is that I have what the thought is given to me, and that what the people are like, and what I have. I'm now knowing that what is the app Chamcash. So I like it because in this there is not only employment only, because there is everything. See, what is the main problem of our country, of our India, that India has a lot of unemployment. So in this program, the Digital India, like what is there so many things in this. So in this Chamcash, what is it's mirrored, and then what is it's basically fundamental in the because it's very nice, because in this it is employment also, a salary, and a progress, because everyone here in India, like what is it, if there is in there only 1% of our Indian economy, 1% of only Indian people, the 58% of Indian economy is only with the 1% people. That, and then 12% people has more than 90% of economy of the whole India. But then the 10% is 10%. I would say there is the more than 88% people has only 10% of the only economy, in which the simple people, the middle class people are like me and you. So the Chamcash is the Digital India. The Chamcash is doing that to be a success, that to be grow success, to make everybody employment and to stop unemployment. So I want to say about something about employment, about entrepreneurship skills. Because what is in Digital India, the Chamcash, the other everything has main thing, entrepreneurship skills, and the entrepreneurship. So these type of functions give us entrepreneurship. So what is entrepreneurship? So I introduce to you this. Learning is a never-ending process, but what to learn is to be determined at an early age. As a child of 21st century, I strongly feel that entrepreneurship skills needs to be developed in the formative years of a student. Our generations have been raised to go to schools. Make the crucial choice between medical and non-medical. Get a degree for a job. The world has completely changed today, and is no longer the gilly dunda generation. The present generation is exposed to the latest in technology in the world. In this age when job security and future certainty has become a threat, our present education system is failing to fulfill the expectations of today's youth. And this I've said, like, what was my one of the line was, in this age when job security and future certainty has become a threat. So what is in this? Like, I won't say that I want to get the job or I want to get it. But now the anchor, the state secretary has also said at the people, like in this it is greater than any job. So the Chamcash will be greater than any job. It is also on our own work. There is not any job security. That if the job will be not to us, so we cannot be success. There will be a huge loss to us. But in this app, anyone, it is not that it is not any of security that if you will not do so you will not be there, and will get a huge loss. But in this method, there is nothing like that, and everything what you want. And everything what you want is very easy, and there is not any job security. And I would say that in this, sometimes the present education system is failing to fulfill the expectations of today's youth. The present education system needs to be cultivated and shaped, because in this method, what is you can think there is Chamcash. So you take only by 8. So it is not like that it will give you. So I have one of the methods. If you
contact a person. So you will go on the level 1. So in this you are being success, and you are also going to be success. It's not the success of any individual, it's the success of the whole nation. Thank you. Have a nice day. देखा, आज हमें ये भारतीय होने पे गर्व होता है कि हमारे भारत में ऐसे बच्चे हैं जो पूरी दुनिया के लिए काफी है, और हमें चैन का इसमें ये गर्व होता है कि हमें ऐसे ऐसे परिचय मिलते हैं। तो जोरदार तालियों से हम सबसे पहले हमारे गूगल का स्वागत करेंगे। आपसे जानना चाहते हैं कि आपने क्या क्या समझा। चलिए, शब्दों पे मत जाइए, भावनाओं से आपने क्या क्या समझा। जय जय। चलिए, आज ये गूगल वॉय पूरी दुनिया को बताने के लिए काफी है, जिन्होंने अपनी भाषा में ये बताया, यानी कि इंग्लिश में, कि चैन कैश किस प्रकार से लोग को रोजगार, सिक्योरिटी, जॉब पूरी दुनिया में आसानी से दे सकता है। और ये ऐसा नहीं कोई रटाया हुआ था, क्योंकि हम लोग जानते हैं रटने में भी हम लोगों को दिक्कत आ सकती है नहीं? क्या आपको बोलते समय ऐसा लग रहा था कि ये रटा हुआ है? बिल्कुल नहीं। तो साथियों, excuse me, I have a question. मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जैसे it's not like आप कभी भी if you go to any other country like US is a successful country. It's a developed country, or India is a developing nation. So you think like if you go to any big company like Google, Microsoft, or anything like Microsoft has a CEO Satya Nadella, who's from India. Google is Sundar Pichai, he's from India. Every great company is having an Indian. That is the matter, Indian prodigies are going to abroad. But if you, जैसे जो इंडिया की प्रतिभाशाली Indian prodigies are going, वो फॉरेन में जा रही है, but in the Cham Cash वो अपने ही देश में रह के अपने देश को सक्सेसफुल बना सकते हैं। और देखिए, जैसे कई लोग बोलते हैं कि इंडिया की जो prodigies होती है, they go to a foreign because वे पलायन करते, because there is not any job, और यहाँ कुछ इतना अच्छा नहीं है। But what is like you are going to Cham Cash, जैसे इंडिया के लोग वहां जाते, तो इसको वर्ल्ड के लोग, इसको दूसरे देश के लोग या अपने इंडिया में यूज करेंगे, क्योंकि इससे ही इंडिया ग्रोथ कर सकते हैं। दिस टाइम इंडिया कैन बिकम डिजिटल एंड इंडिया कैन बिकम सुपर पावर एंड नंबर 1। तो ये हमें मैसेज मिला कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जिस प्रकार से इंडियन है, ठीक है, तो उसी हिसाब से आज चैन कैश इंडियन है, लेकिन पूरी दुनिया में आज अपना परचम लहरा रहा है। अब मैं आगे महेश सर को बुलाना चाहूंगा, जो थोड़ी बात करना चाहेंगे हमारे गूगल बॉय से, और गूगल बॉय को सम्मानित करेंगे। तो आप लोग जोरदार एक बार फिर तालियां बजाइए कौटिल्य जी के लिए। और आप वार्तालाप, मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग थोड़ी सी वार्तालाप जरूर सुने, प्लीज सर। हेलो कौटिल्य। हेलो। आप सभी लोगों को पहले तो बताना चाहूंगा, सीरियसली यहां पर आने से पहले कौटिल्य को यह नहीं पता था कि ये कहां आ रहा है। ही इज अ जेन्युइन इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। ये फ्यूचर में कहां तक जा सकते हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक बनने वाले हैं आने वाले टाइम। I want to be a space scientist. My aim is to become a space scientist. Yes. तो कौटिल्य, आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाए, 2-3 आप में से कोई करना चाहेगा? क्या पूछेंगे? One thing, जैसे आप पूछने के पहले, जैसे लोग बोलते हैं that please ask to any topic, जैसे मैंने एक दिन सुना था कि ये बताइए कि मैं I want to see that if you can ask me because the world जो ज्ञान है, it is endless. It is like the space, it will not end. So I want to say that please ask me to astronomy, to the space. It's my favorite topic now, to geography, because I like these. Wow. And मैंने आपको बोला था I want to be a space scientist. तो आप प्लीज मेरे से स्पेस के बारे में पूछिए। ठीक है कौटिल्य, हम पूछते हैं आपसे कि आप ये बताओ, करनाल से बहुत बड़े एक स्पेस, कल्पना चावला। नहीं, मैंने क्वेश्चन पूरा किया ही नहीं, अभी मैं और पूछूंगा ना।
करनाल से एक बहुत बड़े स्पेस साइंटिस्ट क्या आने वाले समय में भी हो सकते हैं? नहीं, because what is Karnal जो है, it is a hub of prodigies, so it can be easily, because it's a hub of prodigies. ओके अच्छा, एक छोटी सा एक क्वेश्चन वैसे ही कॉमेडी तौर पे मैं कौटिल्य से पूछना चाहूंगा। कौटिल्य, एक पहेली, मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन नॉर्मल, आप सभी लोग भी बहुत लोग जानते होंगे। एक जज ने अपने भाई के कत्ल के जुर्म में उसे बरी कर दिया। कैसे बनाना? एक जज ने अपने भाई के कत्ल के जुर्म में उसे बरी कर दिया। कातिल अपने बाप का इकलौता बेटा था। बताओ जज कौन थे? जैसे एक जज ने अपने भाई को कत्ल के जुर्म में बरी कर दिया, ठीक है? अच्छा। और कातिल अपने बाप का इकलौता ही बेटा था। अब जज कौन थे? वो उसका भाई था। वो तो इकलौता बेटा था। नहीं, आपने शुरू में क्या बोला? दोबारा बोलता हूं, एक जज ने अपने भाई को कत्ल के जुर्म में उसे बरी कर समझ में दिया। आ गया। You want to say that every Indian एक इंडियन का भाई तो होता है। देखिए, एक जज था, उसके पास 2 मुजरिम आए। अच्छा। 2 मुजरिम, उसने एक को छोड़ दिया। दोनों की जो सजा थी सेम होनी थी। एक को बरी कर दिया और एक को फांसी पर पहुंचा दिया। तो जिसको बरी किया उसके लिए, जिसको फांसी पर लटकाया, उसने पूछा, जज साहब, यदि हम दोनों ने एक ही गुनाह किया था तो आपने इसको क्यों छोड़ दिया? तो जज ने कहा, मैंने इसको इसलिए छोड़ा, ये अपने बाप का इकलौता बेटा है लेकिन मेरा सगा भाई है। तो आप ये बताइए, जज में और उस कैदी में क्या रिलेशन था? जज में और उस कैदी में क्या रिलेशन था जिसको उसने छोड़ दिया? क्योंकि जज ने कहा ये कैदी अपने बाप का इकलौता बेटा है, अकेला बेटा, लेकिन मेरा सगा भाई है। तो जब अकेला बेटा था तो सगा भाई कैसे हुआ? क्या रिलेशन सगा था? मतलब कजन नहीं था? नहीं, सगा। अच्छा, सगा। जी। तो लेकिन इसने बोला था कि वो इकलौता था, मतलब अच्छा बेटा ही इकलौता था, तो बहन कहाँ थी? लेकिन आपने बोला कि एक जज था, आपने उस जज को फीमेल में नहीं मेल में बोला है, इसलिए मैंने मतलब दोबारा बताता हूँ, एक जज ने अपने भाई को कत्ल के जुर्म में उसे बरी कर दिया। आपने ये नहीं बोला था, आपने बोला था एक जज था। आपसे कोई जीत नहीं सकता। एक जज थी, तो आपने एक जज था। मैंने कहा थे, जज कौन थे? नहीं, आपने बोला था एक जज था। ओके। ये छोटा बच्चा एक क्वेश्चन करना चाहता है, प्लीज कौटिल्य जी। I want to ask that, what is black hole? Black hole is a hole. It's not scientifically a hole because there is not anything. There is mass like what is our sun? It is a G-type mean sequence star. So it will not become to any neutron star. It will become to a black hole. But if the area of a sun is 13 lakh times bigger, 13 lakh times more than 13 lakh times bigger than their whole Earth. So what is my question? My answer is that if it will become a black hole, so it will become of less than 5 or 6 kilometers. It will become so if our Earth will become a black hole, वैसे तो अर्थ ब्लैक होल नहीं बनेगी। अगर वो बनती तो it will be less than। कौटिल्य जी, ये आपके अभी समझ में नहीं आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे हिंदी में पूछा जाए तो आप हिंदी में आंसर दे सकते हैं? जी, हम चाहते हैं ये क्वेश्चन हिंदी में पूछिए। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल एक साइंटिफिकली इट्स नॉट अ होल। ये होल नहीं है, बट जो उसके अंदर ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन होती है, जैसे देखिए जो हमारा सन है, ये G2 टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है, तो इट विल ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्लैक होल, नॉट अ न्यूट्रॉन स्टार। तो जैसे ये ब्लैक होल बनेगा, तो व्हाट इज द टॉपिक, इस पे अगर ये ब्लैक होल बनेगा तो इट विल बिकम लेस देन 5 or 6 किलोमीटर्स।
चलिए लोग समझ गए। लेकिन अगर अर्थ होएगी, अर्थ ब्लैक होल बनेगी, बस बनना तो है नहीं। अगर अर्थ ब्लैक होल बनेगी, so it will become less than 10 centimeters. कौटिल्य जी नेक्स्ट क्वेश्चन। Patile, if I want to make my daughter a space scientist, in which stream she should study? Now what is like जो इसका इंटरेस्ट है आप इस पे, because No, if she wants to make space scientist, Okay. then what degree she will have to get for that? What course? so it is space scientist, it is in astronomy. So astronomy, it is a part of science. So she will automatically go in non-medical only. Master of astronomy? No, no, because there is astronomy is a part of science only. It's not any other. It's a part of science. Okay. Thank you. But there is. देखिए आप लोगों की तरफ से एक मैं ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर जिसका जवाब कौटिल्य जी ने दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा। क्या आप तैयार हैं? पूरा हिंदी में होगा और आप लोग भी समझिए। आप भी कौटिल्य जी उसे पहले ध्यान से सुनिए और सटीक आंसर होना चाहिए। पूछूं? आप ये बताइए, जमीन सिंपल है बिल्कुल, ठीक है? Plain है। हाँ बिल्कुल, उसमें कहीं दरार नहीं है। लेकिन जब एक खूंटे को जमीन में ठोका जाता है तो उसकी मिट्टी कहां जाती है? तो क्या वो दब जाती है अंदर। खूंटा क्या होता है? एक लकड़ी को, जमीन सिंपल है, उसमें कहीं भी दरार नहीं है। एक लकड़ी को जब जमीन के अंदर ऊपर से किसी से प्रेशर बनाया जाता है, लकड़ी जब नीचे जमीन में जाती है तो उसकी मिट्टी कहां जाती है? अगर हम उसको ऐसे मारेंगे, हाँ, तो मिट्टी इधर उधर कहां जाती जब जगह नहीं थी? तो मिट्टी जैसे इसके अंदर काफी तो हवा में मिल जाती है और कुछ नीचे भी दब जाती है। चलिए वेरी गुड, मैं जोरदार तालियों से स्वागत चाहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका कोई आंसर नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे ही पूछते हैं जैसे बैंगन को इतना चिकना कौन बनाता है, ठीक है? कोई बात नहीं, उन्हीं में से एक ये क्वेश्चन था और मैं जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा। और अपने मेरी एक क्वेश्चन है, जैसे लोग बोलते हैं कि ऐसे इनके अंदर साइंटिफिक, हर क्वेश्चन के अंदर साइंटिफिक रीजन होता है। जैसे बंदे बोलते हैं कि मुर्गी पहले आया अंडा, तो इसका सिंपल सा अंतर है। आप उसको साइंटिफिकली लेंगे तो पहले अंडा इसलिए आया क्योंकि अगर आप देखिए तो अंडा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और मुर्गी एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। वेरी गुड, चलिए एक क्वेश्चन का हमेशा मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से पहले आता है। चलिए आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे पहले मुर्गी आई अंडा, तो क्या आया? पहले अंडा आया। आप बता सकते हैं कि हमें ये आंसर गूगल बॉय ने दिया और मैं चाहूंगा गूगल बॉय को सम्मानित करने के लिए अपने सीएमडी महेश सर से प्लीज सम्मानित करें। और आप लोगों की जोरदार तालियां होनी चाहिए गूगल बॉय के लिए, प्लीज। थैंक यू। एंथम सॉन्ग जो हुआ अच्छा लगा, जानना चाहते हैं सॉन्ग के लिए किसने लिखा है? तो हमारे बीच आज मौजूद हैं जो कि मीडिया में भी हैं और इसके अलावा चैनकास्ट, पूरी मीडिया, चैनकास्ट मीडिया को संभालते हैं। यहाँ के जो भी सॉन्ग होते हैं उनको ये गाते भी हैं और लिखते भी हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पर आपकी तालियों के साथ अंजय कुमार कौशल जी को। प्लीज कम ऑन द स्टेज और हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।